Hello viewers and my students, I Dr. Megha Choudhary welcome you all, and today topic of discussion is Martorell ulcer. This is an ulcer associated with high blood pressure or diabetes, that is elevated blood sugar levels, or a case of atherosclerosis. So if patient is having atherosclerosis, अगर blood vessels narrow हो रही हैं, so there will be resistance to the blood flow and proper blood flow नहीं होगा तो there will be no proper blood supply to the skin, so skin will get dead, वहाँ पे ulcer formation start हो जाएगी. Now in clinical features, this ulcer will start with a blister, red eruption or a lesion, eczema. Then later on this get transferred into a proper ulcer. Now this ulcer has not a particular margin, जो clinical features में कोई particular margin नहीं दिखेगी, and it is very painful, excruciating pain होगा, patient will complain of so much pain. Then if this infection reaches to the bone, तो investigation में MRI CT scan is needed and biopsy is very good for the investigation. Beside this, in blood test there would be elevated WBC count and C-reactive protein भी बढ़ा हुआ मिलेगा patient में because there is infection. So in treatment एंटीबायोटिक्स देंगे जो इन्फेक्शन है अगेंस्ट इट. बिसाइड दिस, बिकॉज इट इज़ ड्यू टू एलिवेटेड ब्लड शुगर एंड हाई रेस्ड बीपी, तो जो रेस्ड बीपी उसको कम करना है तो हाइपरटेंसिव ड्रग्स देंगे टू कंट्रोल द ब्लड प्रेशर ऑफ पेशेंट. देन पेन किलर्स देंगे. पेन किलर्स के अलावा पेशेंट को कंप्रेसिव स्टोकिंग्स पहनने के लिए बोलेंगे. कंप्रेसिव स्टोकिंग्स इज वेरी एसेंशियल बिकॉज जो ब्लड वेसल्स नैरो हो गई हैं, ब्लड फ्लो अच्छे से नहीं हो रहा, तो कंप्रेशन स्टोकिंग से ब्लड फ्लो अच्छे से होगा. एंड अगर ब्लड थिक हो रहा है तो ब्लड थिनर्स देंगे, एंटीकोगुलेंट्स देंगे पेशेंट को. स्मोकिंग से दूर रहने के लिए बोलेंगे पेशेंट को एंड प्रॉपर रेस्ट कराएंगे. जो अल्सर है वहाँ पे अगर पस फॉर्मेशन है या नेक्रोसिस हो गया, जो डेड टिश्यू है उसको हटाएंगे, डिब्राइटमेंट करेंगे, प्रॉपर क्लीन करेंगे वुंड को. What is Martorell ulcer? Martorell ulcer is a very painful ulcer of the lower leg that develops in association with poorly controlled high blood pressure. It is also called Martorell hypertensive leg ulcer. Atherosclerotic ulcer of Martorell and Martorell hypertensive ischemic leg ulcer. सो इस्चेमिया हो रहा है स्किन में क्योंकि प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो रही. जब आर्थरोस्क्लेरोटिक डिजीज़ है कोई, तो ऐसे पेशेंट में वहाँ पे सेकेंडरी मार्टोरल अल्सर हो सकता है. अदर नेम्स आर नेक्रोटिक एंजियोडर्मेटाइटिस, हाइपरटेंसिव लेग अल्सर. हाइपरटेंसिव लेग अल्सर इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इट इज़ रिलेटेड विद हाई बीपी, हाई ब्लड प्रेशर. सो दैट पीपल जिनको शुगर लेवल एलिवेटेड है, शुगर एलिवेटेड है ब्लड में या हाई बीपी है, उन लोगों को ये अल्सर हो सकता है. सो दिस अल्सर्स अकर इन पेशेंट विद हाई ब्लड प्रेशर दैट इज लॉन्ग स्टैंडिंग एंड ऑफन पुअरली कंट्रोल्ड. या डायबिटिक मेलाइटिस है जिन पेशेंट को, जो एज रिपोर्टेड हुई है अभी तक वो 41 से 86 ईयर्स तक के लोगों में ये अल्सर रिपोर्ट किया गया है. इट इज़ बिलीव दैट अल्सर रिजल्ट्स फ्रॉम नैरोइंग ऑफ स्मॉल ब्लड वेसल्स लीडिंग टू इंक्रीज्ड रेजिस्टेंस टू ब्लड फ्लो एंड लैक ऑफ ब्लड सप्लाई टू द स्किन. कॉमन साइट्स इन्वॉल्व्ड. फर्स्ट, मोस्ट कॉमनली occurs on the outer aspect of back of lower leg just above the ankle and over the Achilles tendon. So lower extremity is affected, that is leg. In clinical features, this Martorell ulcer will start as a red blister or patch that will turn blue and finally ulcer formation will occur. Patient will complain of extreme pain and this ulcers will be in irregular shape. Satellite ulcers भी दिखेंगे and this ulcer will expose the underlying tissue, tendon and bone. Solitary or symmetrical lesions will be seen in one or both legs. So both leg can be involved. And if infection reaches to the underlying tendon or bone, तो osteomyelitis हो जाएगा पेशेंट को, that is the inflammation and infection of bone. Now in investigations, biopsy कराएंगे. Biopsy में deep narrow elliptical incisional skin biopsy and punch biopsy.
ब्लड टेस्ट में सी रिएक्टिव प्रोटीन एंड WBC काउंट विल बी एलिवेटेड बिकॉज देयर इज इन्फेक्शन, सो WBC काउंट हाई हो जाएगा। ट्रीटमेंट में क्योंकि ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना है तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, स्पेसिफिक बीटा 1 ब्लॉकर्स एंड एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स देंगे पेशेंट को। पेन रिलीफ करने के लिए नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। इन केस ऑफ सीवियर पेन, narcotic analgesics are needed, antibiotics to control secondary infection, then anticoagulants देंगे। शुगर लेवल को डाउन करने के लिए मेडिसिन देंगे। सिम्फेक्थेटोमी इज अ प्रोसीजर इन विच सिंपैथेटिक नर्व्स आर कट, अगर नर्व्स इन्वॉल्वमेंट है। प्रिवेंशन में स्मोकिंग क्विट करानी है, कंप्रेशन स्टॉकिंग्स पहनवानी है पेशेंट को, एंड कोई ट्रॉमा ना हो इसका ध्यान रखना है।